अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और पॉजिटिव साइकोलॉजी के लेक्चर्स का ना सिर्फ बगौर मुताला कर रहे होंगे बल्कि ये भी कोशिश कर रहे होंगे कि जो कुछ हम पढ़ रहे हैं इसको अपनी ज़िंदगी में कैसे इम्प्लीमेंट करना है। इसीलिए आज के लेक्चर का आगाज़ मैं कुछ मिनी एक्सपेरिमेंट से करूँगी, लेकिन पहले हस्बे मामूल पिछले लेक्चर को रिव्यू कर लेते हैं। द प्रीवियस लेक्चर वॉज अबाउट पॉजिटिव स्कूलिंग. And as far as positive schooling is considered, I always have recommended this to you that do not think that it refers to a school. ये एक सिर्फ जूनियर लेवल या हाई लेवल स्कूल की बात नहीं है. पॉजिटिव schooling refers to the whole process of education. And we talked about a metaphorical positive schooling model that was presented by Snyder and Lopez. And in the previous lecture, we discussed a few stages of that model. और कौन सी stages हमने discuss की थी? सबसे पहले हमने बात की थी जो second story है वो कहाँ से शुरू होती है. The second story is related with establishment of goals regarding the content of the syllabi. The good teacher is always very careful in developing the goals. That what is the purpose of learning this course? आपको क्या फ़वाइद हासिल होंगे जब आप ये कोर्स पढ़ लेंगे और उसका अल्टीमेट एंड क्या है. जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में आपके साथ ये बात की थी कि अगर आप पॉजिटिव साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो हमारी गोल्स क्या हैं कि आप क्या क्या सीखने के लायक हो सकेंगे ये कोर्स पढ़ने के बाद. एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट अ गुड टीचर डिवाइड्स the long-term goals into short-term sub-goals so that reinforcement is obtained at different occasions of teaching. Another important aspect regarding goals is that an attempt shall be made to extend the abilities and stretch the abilities of the students. Gradually आप goals को difficult बनाएं ताकि students की जितनी भी abilities हैं आप उसको stretch कर सकें. How far they can learn, this is very important for structuring as far as the job of a good teacher is concerned. अब उसके बाद हमने बात की थी कि आप प्लान करते हैं क्लासरूम एक्टिविटीज़ को, अपने कोर्स को आपने पढ़ाना कैसे है, और फिर ये भी देखते हैं कि हाउ यू कैन कीप योर स्टूडेंट्स मोटिवेटेड इन द कोर्स, इन द लर्निंग प्रोसेस. एज फार एज प्लानिंग इज कंसर्न्ड, एवरी टीचिंग, whatever subject a teacher is teaching is concerned a careful planning beforehand. How you are going to teach your course, क्या क्या strategies आप adopt करेंगे और classroom activities क्या होंगी, घर में जाके कौन सी activities जो है वो की जाएंगी. And it is always recommended that it should be related with real life experiences and cultural content and cultural context of a person. As far as motivation is concerned, this is also a very important aspect of teaching because it is the motivation which enables students to learn more. And they understand that the process of learning never stops even after they leave the classroom. Motivation की जहाँ तक बात है उससे एक related aspect है hope, inculcating hope in your students. And this refers to the hope model which has been presented by Snyder. And it consists on two things. One is agency thinking and the other is pathways thinking. Agency thinking that I am able to do that. और इस मोटिवेशन को आप साथ लेकर चलते हैं और फिर ये pathways डिटरमिन करते हैं कि फिर ये जो गोल हासिल करनी है इसको कैसे अचीव करना है, कैसे वहाँ तक पहुँचना है. And there are several things important that how we can keep our students motivated. For example, we should always be ready to answer their questions. अगर उस वक्त आपके पास questions नहीं है तो you can bring them later and try to provide them constructive, positive feedback. But you should also be careful कि ये positive feedback जो है वो दूसरों की presence में कहीं हद से ज़्यादा ना बढ़ जाए ताकि बाकी students jealousy का या कमतरी का शिकार ना हो जाएं. इसके अलावा always be innovative in your attempt of creating and establishing new activities, classroom demonstrations in the class or while you are lecturing. And then we talked about inculcating hope. जैसे मैंने पहले कहा कि जब आप अच्छी तरह से प्लान कर लेते हैं, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं, then you inculcate hope in the student
that he is able to achieve his goals. And the final aspect of that school model is that the person finally is able to share the knowledge with other people around. Then it is the responsibility of the person that whatever he has learned, he is ready to share with the community. और इसी तरीके से education और knowledge जो है वो spread करती है. And in that reference, we talked about a program that was developed by Donald Clifton. And that program is called Strengths Quest. Strengths Quest में एक questionnaire जो है वो fill करना होता है. And that is available online. और कंप्यूटराइज्ड उसकी असेसमेंट होती है, आपको स्कोर मिल जाता है. एंड द एडवांटेज ऑफ दैट प्रोग्राम इज दैट यू अटेम्प्ट अ क्वेश्चनायर दैट कंसिस्ट ऑन अ नंबर ऑफ आइटम्स एंड अ नंबर ऑफ थीम्स, और उससे फाइनली यू गेट एंड एक्सट्रैक्ट 5 important themes which are related with your abilities. It shows that you are able to transcend in these kind of traits of your personality. यानी इंसान में बहुत सारी खूबियां होती हैं, लेकिन आपको आपकी ज़ात में कौन सी प्रोमिनेंट जो हैं एस्पेक्ट्स मिल सकते हैं जिन पर आप फर्दर कंसंट्रेट कर सकते हैं. स्टडीज हैव शोन दैट इट हैज़ 2 advantages. One is that you understand your capabilities, your skills, and then you are able to match your abilities with those particular elements, और आप फिर उनमें enhancement पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं. The final topic of previous lecture was teaching as a calling. There are many people, whether they are associated with high status or low status jobs, they considered work as a calling. Or when we consider work as a calling, then it is intrinsically very satisfying. और हम इसको एक कैरियर के तौर पे नहीं कर रहे होते या एक ड्यूटी समझ के नहीं कर रहे होते. The work becomes really a source of great pleasure for us. And we derive a lot of satisfaction from that. और उस सिलसिले में मैंने एक टीचर का जिक्र किया था जो कि अपनी क्लास को एक स्टेज की शक्ल दे देता था. लाइक ही वुड लाइक टू डिमॉन्स्ट्रेट, ही वुड लाइक अदर स्टूडेंट्स टू डिमॉन्स्ट्रेट इन डिफरेंट क्लास एक्टिविटीज. एंड ही बिलीव्ड दैट it is not important that the teacher only produces and provides knowledge, बल्कि वो उसके फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन जो है सिर्फ ये प्रोवाइड करने के खिलाफ था. And he pointed out that he is more interested that the students ask why questions rather than what questions. What question will tell you that what are different facts and figures. सवाल का जवाब क्या है? Why question is taking you to the understanding of the concept. That is why he said that he wanted his students to become thinkers. They shall be able to think themselves and find out the answers. अब आज कुछ इस सिलसिले में ही मिनी एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके बाद आगे चलेंगे. पहला एक्सपेरिमेंट आपने क्या करना है? लेटिंग गो ऑफ अ बैड टीचर. आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा टीचर भी आया होगा जिससे आपको लगता है कि आप कुछ भी सीख नहीं पाए, और सीख भी नहीं पाए, या ये भी हो सकता है कि कोई गलत बातें भी आपको टीचर में लगी हों. तो हमारे एक पिछले टॉपिक के साथ ये रिलेटेड है, एंड दैट इज़ फॉरगिवनेस. भूल जाएं उस टीचर को एंड कंसंट्रेट ऑन योर गुड टीचर, एंड देन सेइंग थैंक्स टू अ गुड टीचर. कोशिश करें अपने टीचर्स को थैंक्स कहें जब आपको ये लगे कि मैं बहुत कुछ इनसे सीख रहा हूँ, सीख रही हूँ, और इससे सिर्फ एक एकेडमिक चीज़ नहीं सीखी और भी कुछ सीखा है, तो उस टीचर का शुक्रिया अदा करें. इवन एकेडमिक्स किसी ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दिए तो तब भी वो शुक्रिया के हकदार हैं. और अगर कोई पुराना टीचर याद आ जाए जिसका शुक्रिया कभी अदा नहीं किया, यू कैन डू इट नाउ. इट इज़ नेवर टू लेट. बल्कि मैं जैसे अगर अपने आप की मिसाल दूं तो मुझे कुछ टीचर याद आते हैं जब मैं मैट्रिक में थी, और मैं समझती हूँ कि अगर इंग्लिश की जो बेस है, फॉर एग्जांपल, वो इस टीचर ने प्रोवाइड की मुझे. मैं अपनी यूनिवर्सिटी के एक टीचर को अक्सर याद करती हूँ जब भी मुझे लोग ये कहते हैं कि मैं स्टैटिस्टिक्स जब पढ़ाती हूँ तो कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर होते हैं, मैं स्टूडेंट्स के भी क्लियर करती हूँ, तो मुझे अपनी एक टीचर याद आ जाती हैं जिन्होंने एक्चुअली वो बेस मजबूत बनाई थी. और इसी तरह से आगे जब आप चलते जाते हैं तो आपको अच्छे अच्छे टीचर्स मिलते हैं, आप उनका शुक्रिया अदा करें. और दिस इज़ रिलेटेड विद ग्रेटिट्यूड टॉपिक ऑफ आवर कोर्स. यहाँ पे एक कोटेशन दिखाना चाहूँगी आपको, दैट इज़ ऑफ अ 19th century historian, Henry Adams. He said,
A teacher affects eternity. He can never tell where his influence stops. टीचर का इन्फ्लुएंस जो है वो महदूद नहीं होता, बहुत वसी होता है, क्लासरूम तक महदूद नहीं होता, चलता ही जाता है एज लॉन्ग एज यू आर लिविंग। अब आपको एक बहुत अच्छे टीचर के साथ एक इंटरव्यू दिखाते हैं और उनसे हम ये पूछते हैं कि व्हाट आर द बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आर essential characteristics of a good teacher. At Montessori level, we are dealing with children 3 plus to 5. So the most important thing is to be comfortable with children. You have to be very loving. This is the first time that they leave home and they are alone without their parents. A good teacher needs to have a lot of patience and compassion. You need to be organized and bring out the best in each child. The motto of a good preschool teacher is learning is fun. A good teacher always has a smile on her face and is appreciative of every little thing a child does. At an early level, sometimes a teacher just has to understand a child by his body language. Even if a child doesn't speak, the teacher just has to understand what he wants by his behavior. Now we'll start today's lecture, and that is related with good work. In other words, we can also call it gainful employment. When you are satisfactorily employed, then you gain a lot of things. और सबसे बड़ी बात यह है, you gain mental health. और ये एसोसिएशन जो है बहुत सारी स्टडीज़ में साबित हो चुकी है. That is why it can also be called gainful employment. अब ये जो gainful employment या good work का टॉपिक है, ये इसी मॉड्यूल का हिस्सा है जो मैंने आपसे ये बात की थी कि ये आखिरी मॉड्यूल है आपके लेक्चर का, एंड दैट इज़ मॉड्यूल नंबर 6. एंड व्हाट इज़ दैट? पॉजिटिव एनवायरनमेंट्स. बिफोर दैट वी हैव डिस्कस्ड पॉजिटिव स्कूलिंग, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट. People have shown that there are different factors which are related with gainful employment. There are different elements which are concerned with positive work. और जहाँ इंसान खुश होता है काम करके, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं. Obviously, there are individual differences. For example, my priorities regarding a good work definition will be different. इसी तरह किसी और की definition जो है वो different होगी. So, several kinds of elements have been shown through different kinds of research. लेकिन generally जो हमें agreement नज़र आता है, हम उस point of view से बात करेंगे. So surveys about the importance of certain factors have been pointed out by different researchers. For example, one research was conducted by Hagic and Leonard in 1991. And that showed that when people were asked that what factors are important as far as their work environment is concerned, then the health insurance was the number one. अब ये health insurance का जो concept है वो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा नहीं है. शायद कुछ कंपनीज हैं जो कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस देती हैं, और गवर्नमेंट के अदारे भी हैं जो जब आप बीमार पड़ते हैं तो वो आपको इलाज की फ्राहमी में मदद देती हैं, फैसिलिटेट करती हैं. लेकिन बाहर ये बहुत एक ऑर्गेनाइज तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड की जाती है. और चूँकि हेल्थ वहाँ बहुत महंगी है, अगर आपने कोई भी इलाज कराना है तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव. मेडिसिन आर आल्सो वेरी वेरी एक्सपेंसिव. दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज़ नॉट द केस इन आवर कंट्री. हमारे मुल्क में तो वैसे आमदनी के लिहाज से सारी चीज़ें ही महंगी हैं, लेकिन हेल्थ उतनी महंगी नहीं है जितनी कि बाहर के मुल्कों में है. दैट इज़ वाई परहैप्स इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू पीपल इन दोज काइंड ऑफ सर्विस. इसके अलावा देयर वर सेवरल अदर फैक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल, लेयरली एक्टिविटीज़, वेकेशंस. आपको कितना चांस मिलता है कि आप थोड़ा उसमें रिलैक्स भी कर सकें, आपको कितनी छुट्टियां मिलेंगी, बोनसेस कितने मिलेंगे, हाउ यू वुड इंटरेक्ट विद पीपल, एंड व्हाट अबाउट सिक्योरिटी इन योर जॉब. तो पीपल हैव पॉइंटेड आउट डिफरेंट फैक्टर्स एज फार एज देयर प्रेफरेंसेस फॉर अ गुड वर्क एनवायरनमेंट इज़ कंसर्न्ड. आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान में कौन सा फैक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट होगा? अगर आप मेरे से पूछें तो मैं ये समझती हूँ कि वर्क एनवायरनमेंट एज सच जो है वो मेरे लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है, कि देयर इज़ नो थ्रेट इन द एनवायरनमेंट.
और काम का प्रेशर ज़रूर होना चाहिए बिकॉज दैट इज़ एबल टू स्ट्रेच योर एबिलिटीज़, जैसे कि हमने पहले बात की थी, और चैलेंजेस भी होने चाहिए। लेकिन कॉलीग्स का अच्छा इंटरेक्शन, एक स्मूथ इंटरेक्शन इज़ वेरी एसेंशियल, and for me it is very important that a comfortable environment is provided in which people are very supportive rather than they are rejecting, criticizing and they are pulling each other's legs. तो ये नहीं होना चाहिए, ये इंसान को बहुत बेसुकून कर देता है। बट people would have different viewpoints, some would consider salary is very important, और आजकल की दुनिया में वाकई इनकम की बहुत अहमियत है, और ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में तो वैसे भी देयर इज़ अ क्लोज एसोसिएशन बिटवीन वेल्थ एंड हैप्पीनेस, और इसके बारे में आपके साथ पहले भी बात कर चुकी हूँ। सो बेसिकली इन टुडेज लेक्चर वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, व्हाट फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट if you want to gain from your employment. And gaining doesn't mean that you are gaining always money, it means that you are getting benefit as far as your psychological health is concerned. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं? The first one is varieties in duties. The second one is safe working environment. Third is income. The next is driving purpose in providing service. Happiness and satisfaction is in the middle क्योंकि ये related है सबके साथ. Then engagement and involvement, performing well and meeting your goals, and then companionship and loyalty. अब ये जिस ऑर्डर में मैंने दिए हैं इसका ये मतलब नहीं है कि जो पहला फैक्टर है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आखिरी है वो कम इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज दैट रियली डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल नीड्स, और डिफरेंट पीपल हैव कंसिडर्ड that their importance varies according to different people, different cultures, different kind of environments or organizations. क्योंकि हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन की बहुत ज़्यादा अहमियत है लाइफ में, इसलिए सबसे पहले मैं इसको डिस्कस करना चाहूँगी। तो अब जो डिस्कशन है वो भी उस ऑर्डर में नहीं हो रही, उस ऑर्डर के बगैर है, बट उसके साथ साथ हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि किसकी कितनी अहमियत है। एज फार एज literature on job satisfaction is concerned, that is huge. A huge amount of research has shown that there is a strong relationship between happiness and job satisfaction. It indicates that those people who are satisfied with their work environment, they are more conducive to stay happy. And studies which were conducted by Diner and Lucas, they showed that there is a correlation of 0.40 between life satisfaction and job satisfaction. और 0.40 जो है एक moderate correlation है। इसका मतलब ये है कि there are other factors also which are important apart from job satisfaction. Obviously खुश रहने के लिए तो बहुत सारे factors important होते हैं, including relationships with other people or money, health वगैरह वगैरह. So high correlation has been achieved in other studies between job satisfaction and happiness, लेकिन मैंने आपको एक स्टडी का बताया that was relatively moderate. As far as one study which was conducted in Pakistan in the form of a survey that showed different results also, वो अभी discuss करते हैं. So Pakistani survey which was conducted by me, ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, that was in fact concerned with predictors of happiness, well-being, और आप वेलबींग को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, सेटिस्फेक्शन, लाइफ सेटिस्फेक्शन एंड हैप्पीनेस. सो वी आस्क्ड 3 questions from people, and people were more than 1000, and that survey was conducted with diverse populations of Pakistan, जैसे कि गरीब लोग, अमीर लोग, आदमी, औरतें, डिफरेंट एज ग्रुप्स, उन सबको हमने कवर करने की कोशिश की थी. अब वी आस्क्ड 3 questions to determine the overall satisfaction of a person with his or her job. What are these questions? Let's first see that. I am a successful person in my job. The second question was, my work is source of satisfaction for me. And the third question is, I am satisfied with my work environment. And the total score will generate your job satisfaction. So what were the results? The results showed that there was a correlation of job satisfaction with happiness, and it was again moderate आप कह लें, या बास स्टडीज़, ये भी रिसर्चर्स ये भी कह सकते हैं कि ये माइल्ड है, 0.31,
वेल द कोरिलेशन ऑफ हैप्पीनेस जो है वो 0.31 है, लेकिन कोरिलेशन विद लाइफ सेटिस्फेक्शन वाज 0.39. सो इट वाज ग्रेटर देन द प्रीवियस कोरिलेशन. रफली आप कह सकते हैं अ मॉडरेट कोरिलेशन अगेन वाज ऑब्जर्व्ड बिटवीन जॉब सेटिस्फेक्शन एंड वेल-बीइंग. और इसकी वजह यही है कि इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि जो शख्स जो है वो अपने काम से सेटिस्फाइड है और उसको घर पे प्रॉब्लम है तो तब भी वो अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाइड हो. सो दिस वाज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ गेनफुल एम्प्लॉयमेंट एंड दैट इज़ हैप्पीनेस एंड लाइफ सेटिस्फेक्शन. The second one is performing well and meeting goals. If you understand and if you think that you are performing well and you are meeting the targets that you have planned for yourself, then it is also related with happiness and job satisfaction. अब why it is essential that you think that you are performing well? क्योंकि इससे आपको एक ज़िंदगी का जो मकसद होता है वो हासिल हो जाता है. आपको ये लगता है कि if this is the purpose of my life, yes, I am able to achieve that. So one meta-analysis which consisted 300 samples and it had 55,000 people in those studies, that meta-analysis was conducted by Judge et al. In 2001. That meta-analysis showed that there is a great link between your performance and life satisfaction. If you think that you are performing well in your work, then you are satisfied with your life also. यानी ज़िंदगी की सेटिस्फेक्शन का आपकी परफॉर्मेंस के साथ बहुत ताल्लुक है. ऐसा नहीं है कि वो जो परफॉर्मेंस है वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं बस उसी को फ़ायदा देती है, वो आपको अपने आप को भी फ़ायदा देती है. बिकॉज you think that your life has a purpose and you are fulfilling that purpose. It is not meaningless. That is why you are more happy in your life. I would like to explain here that what is a meta-analysis, and I think I have explained it earlier in some other lecture. Meta-analysis में basically आप बहुत सारी studies को collect कर लेते हैं and those studies which have relatively similar methodology. और फिर ये देखते हैं कि whether the results that have been obtained from all of these studies, they indicate to the same finding, or the results are robust or not. तो इसलिए मेटा एनालिसिस के रिजल्ट्स पर बहुत ज़्यादा रिलाई किया जाता है. तो इट मीन्स कि ये जो अभी हमने फाइंडिंग की बात की है दैट इज़ आल्सो वेरी रिलायबल. Another important thing as far as performing and meeting your goals is that it refers to career self-efficacy. You have studied before that self-efficacy is a concept which was basically promoted by Bandura. Self-efficacy, that I am able to perform a certain task. I am capable to deal with a particular situation and so on. तो आपको अपनी सलाहियतों पर भरोसा है. कभी वो सिचुएशन स्पेसिफिक होती हैं, कभी आपको जनरल अपने आप पर पूरी तरह एतमाद होता है कि you are able to succeed in every kind of situation. So basically, when we are saying there is a relationship between life satisfaction and performing well, this is related with career self-efficacy. Because when you are performing well, then you understand that you are performing your job in a very good way. और आपकी जो कैरियर है उसमें आप सक्सेसफुल हैं और जो मकासद हैं आपके आप उनको फुलफिल कर रहे हैं. Another thing is that performing well at work is more likely to occur when workers have clear goals. This is very important that you have clear-cut goals, that what you want to achieve in your work. अब सोचिए कि अगर aimlessly मैं काम कर रही हूँ और रोज़ बस ऑफिस जाना मेरा काम है और जो मुझे ड्यूटी असाइन होती है बस वो मैं मोनोटोनसली करती जाती हूँ, उसमें कितना फ़र्क होगा if I would have some clear goals. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मेरे से पूछें तो एज अ प्रोफेसर आई एम क्लियर अबाउट माई गोल्स. आई हैव टू प्रोड्यूस सो एंड सो रिसर्च. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने एक साल में कम से कम 2 या 3 रिसर्चेस जो है मैं वो पब्लिश करना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू कंडक्ट गुड क्वालिटी रिसर्च, दैट रिसर्च विच विल कॉन्ट्रीब्यूट टू नॉलेज, और ऐसी रिसर्च जो पाकिस्तान जैसे खित्ते से जब निकलती है तो वो अहमियत की हामिल होती है.
So it would have significant contribution to the knowledge that people already have. तो ये टारगेट्स होते हैं. इसी तरह से जब मैं एकेडमिकली कोई कोर्स पढ़ा रही हूँ तो मेरे टारगेट्स ये होते हैं कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो इससे अल्टीमेटली क्या सीखेंगे, या अपने कैरियर में और आपके ये कह सकते हैं कि प्रोग्रेस के कुछ स्टेप्स होते हैं. आप ये समझते हैं कि इसके बाद जो है मैंने इस चीज़ के लिए कोशिश करनी है, उसके बाद जो है वो मैं और किस काम के लिए ज़्यादा अटेम्प्ट्स करूँगी. So it is very important that a person has specific and ultimate goals. Short term भी हो सकती हैं और long term भी हो सकती हैं. And often people also state that if you work with a high hope boss, then it is also very beneficial. And what could be the advantage of having a high hope boss? Advantage ये होता है कि boss जो है वो इस चीज़ में क्लियर होता है कि कौन सी गोल्स इंपॉर्टेंट हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और फिर आपको वो उसके मुताबिक काम असाइन करता है. तो हाई होप बॉस जो है वो भी आपकी परफॉर्मेंस जो है उसके साथ रिलेट कर सकता है. द थर्ड पॉइंट इज रिलेटेड विद द सेकेंड वन. एंड व्हाट वाज द सेकेंड वन? और फिर अगेन मैं आई वुड एम्फसाइज दैट इट इज़ नॉट इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस और इम्पोर्टेंस. लेकिन अभी जो मैंने दूसरा पॉइंट डिस्कस किया है वो क्या था, ये तीसरा उसके साथ रिलेटेड है. एंड द सेकेंड पॉइंट वाज परफॉर्मिंग वेल. एंड परफॉर्मिंग वेल इज रिलेटेड विद पर्पस ऑफ डूइंग योर वर्क. द थर्ड पॉइंट इज ड्राइविंग पर्पस. Purpose is actually the sense of providing needed products or services to customers. And it has been seen that workers, whether they belong to high status or low status, there are some workers who think work as a calling. And these are the workers who contribute more to that work. क्योंकि उनको ये लगता है कि they are producing something. और ये इसीलिए मैं कह रही थी कि ये पिछले पॉइंट के साथ रिलेटेड है. अगर आपको ये ना लगे कि आप जो काम कर रहे हैं उसका कुछ फ़ायदा भी हासिल हो रहा है तो फिर वो मीनिंगलेस काम होता है, फिर आप बस ऐसे ही उसको सर अंजाम दिए जाते हैं. ये पहले भी मैंने एक लेक्चर में की हुई है कि बाज़ लोग जो हैं वो काम को एक सादा काम ड्यूटी समझ के करते हैं, बाज़ इसको एक सोर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन के तौर पे लेते हैं. एक मुझे इससे मिसाल याद आ गई. एक ऑपरेशन के सिलसिले में एक दफ़ा मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी और उसमें पट्टी बदलनी पड़ती थी जहाँ पे ऑपरेशन हुआ था. तो एक दफ़ा एक शख्स पट्टी बदलने के लिए आया और मुझे बड़ा एहसास हुआ कि उसने ऐसे एंगेज होके वो काम किया कि ऐसे लग रहा था कि वर्क इज़ कॉलिंग फॉर हिम. अब ये देखिए एक छोटा सा काम है कि पट्टी चेंज करनी है. बहुत केयरफुली वो ये पिछली पट्टी उसने रिमूव की और लग रहा था कि वो ये एहसास कर रहा है कि इसको दर्द भी कम हो और काम भी स्किलफुली हो. और वो बड़ा जायज़ा ले रहा था कि ये जो है सही तरीके से नई पट्टी जो है वो कैसे लग सकती है. जब क्लीन करने का अमल आया, पिछली पट्टी जब रिमूव करते हैं तो आप उसको क्लीन करते हैं वुंड को और उसके बाद नई पट्टी लगाते हैं. तो मुझे बड़ा लगा कि जैसे कि वो उस काम को ऐसे कर रहा है जैसे कि कोई भी काम आप डूब के करते हैं और बाज़ाहिर ये लगता है कि छोटा सा काम है. अब उसके बाद जब दूसरी दफ़ा पट्टी बदलनी थी तो एक और शख्स आया, क्योंकि पहला शख्स अवेलेबल नहीं था. उसने जनाब खींच के पट्टी उतारी, जल्दी जल्दी साफ़ किया, नई पट्टी चढ़ा के ये जा वो जा. तब मुझे रियल डिफरेंस पता चला कि एक ही काम को लोग कैसे मुख्तलिफ अंदाज से कर सकते हैं. और देखिए काम कितना मामूली सा है. तो इस तरह से people who consider work as a calling, it is shown in their work and they derive purpose from that. Another very important factor which is related with gainful employment is engagement. और जो मैं अभी बात कर रही थी कि एक शख्स की मुझे engagement पता चली उस काम में. The way he showed his engagement in just a small work, और किस तरीके से दूसरे शख्स ने कैसे दिखाया कि जी ये ड्यूटी चूंकि मिली हुई है, ये मुसीबत उसको निभानी पड़ेगी, और वो पता चल रहा था उसके अंदाज से. सो दिस रेफर्स टू दिस क्वेश्चन दैट वेदर द एम्प्लॉय इज इन्वॉल्व्ड विद हिज वर्क और नॉट. बेसिकली हमें काम करने के अंदाज से पता चलता है कि आप कितने ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हैं, कितना ज़्यादा उसमें डूब के काम करते हैं, कितना ज़्यादा उसमें एंगेज होके काम करते हैं. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच आर द मोस्ट एंगेजिंग जॉब्स.
कौन कौन सी ज़्यादा जॉब्स की मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स हो सकती हैं, या जॉब्स के कौन से एलिमेंट्स हैं, या कौन सी जॉब्स हैं जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं? So one meta-analysis which in fact had 30,000 workers and that was collected from 50 companies, और वो 50 companies का जो डेटा था उसमें 30,000 employees थे. This study showed that responding positively to this item, that I have the opportunity to do what I do best, related reliability to work productivity. And this study was conducted by Harter in 2002. So it means कि जब हम ये समझते हैं कि जो हमारी abilities हैं उसके मुताबिक हम काम कर रहे हैं, या जो कुछ हम करना चाहते हैं हमें वही काम दिया गया है, तो तब हम बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं. And the correlation between productivity and your performance was 0.37. So it is again a moderate correlation. And this concept of engagement is related with the concept of flow state, which was presented by whom? आप ये बात काफ़ी दफ़ा पहले पढ़ चुके हैं. That concept of flow state was presented by Csikszentmihalyi. He stated in fact that there are certain times when people are in flow state. और ये फ्लो स्टेट होती है वही जाहिर करती है कि आप कितना ज़्यादा इन्वॉल्व हैं किसी काम में. और वो काम जो है वो पढ़ाई का भी हो सकता है, वो काम किसी भी लेवल का हो सकता है, आपकी जॉब भी हो सकती है, और अगर आप कोई म्यूज़िक क्रिएट कर रहे हैं उसका उससे भी ताल्लुक़ हो सकता है. और याद कीजिए कि हमने ये बात भी की थी कि आप फिर मेजर कैसे करते हैं कि यू आर इन अ फ्लो स्टेट. दैट इज़ मेजर्ड बाय हाउ ईजिली द टाइम इज़ स्पेंट. आपको टाइम के गुजरने का एहसास ही नहीं होता. तो ये पूरा एक सेक्शन था जिसका हमने मुताला किया था. सो द पर्पस ऑफ टॉकिंग अबाउट फ्लो स्टेट हियर इज़ दैट इट इज़ रिलेटेड विद योर एंगेजमेंट विद द वर्क, एंड पीपल आर सेटिस्फाइड व्हेन दे आर डूइंग व्हाट दे वांटेड टू डू. तो इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हम करना चाहते हैं, अगर हम वैसे ही काम करें तो फिर उससे सेटिस्फेक्शन भी ज़्यादा होती है और हमारी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है. और आपने देखा कि इस मेटा एनालिसिस में, जो अगेन मैं रिपीट करूंगी जैसे पहले बात की थी, कि मेटा एनालिसिस के रिजल्ट्स जो होते हैं वो बड़े रिलायबल होते हैं. द रिजल्ट्स ऑफ दिस मेटा एनालिसिस शो दैट व्हेन पीपल आर गिवन दोज काइंड ऑफ वर्क्स व्हिच दे रियली वांट टू डू, देन दे आर परफॉर्मिंग वेल एंड दे आर मोर एंगेज्ड इन देयर वर्क. द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट पीपल फील मोर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड व्हेन देयर इज अ वैरायटी इन जॉब्स. एक मोनोटोनस किस्म का काम करना जो है वो लोगों को अच्छा नहीं लगता, और अल्टीमेटली जो है वो बोरियत पैदा करता है. आप खुद सोचिए कि अगर आपको एक ही जैसा काम रोज़ करना पड़े तो लाइफ बेकार सी लगने लगती है. इवन हम लोग जो बहुत से चैनल्स पे काम करते हैं, कभी कभार ये लगता है कि भाई ये रोज़ एक ही तरीके से सुबह उठना, उसके बाद काम पे जाना, और अगर काम में रेपिटेशन हो, अगेन एंड अगेन यू आर डूइंग द सेम काइंड ऑफ वर्क्स, तो फिर उसमें बोरियत का काफ़ी एहतमाल होता है. सो द पॉइंट हियर इज दैट वी आर डिस्कसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ वेराइटीज इन वर्क. देयर शैल बी सफिशिएंट वैरायटी इन वर्क, एंड सफिशिएंटली वेरिड टास्क एट वर्क ब्रिंग हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन. अब ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है कि किसी काम में कितनी वैरायटी लाई जा सकती है. कुछ काम तो होते ही मोनोटोनस हैं, जैसे कि क्लरिकल वर्क्स जो होते हैं वो इसीलिए बोरियत पैदा करते हैं कि उसमें आपने फाइलों को अरेंज करना है, ख़त टाइप करने हैं, बार बार उसी तरह के ऑफिस ख़त जो होते हैं, मेमोरेंडम बनाने होते हैं, मेमोज़ भेजने होते हैं डिफरेंट महकमों को, तो उसमें लोग बहुत बोरियत का शिकार हो जाते हैं. और अगर आप कभी किसी क्लरिकल ऑफिस में जाके देखें तो पता भी चल रहा है कि वो लोग बोरियत का शिकार हैं. वो काम से अक्सर कतराना शुरू कर देते हैं, और इसीलिए उनकी परफॉर्मेंस पे सब लोगों को एतराज़ भी होता है. एक और पॉइंट ये है कि लैकिंग वेरिएबिलिटी द एम्प्लॉय मे लैप्स इनटू प्रेजेंटिज्म. अब दिस इज डिफरेंट फ्रॉम एब्सेंटिज्म. इफ द वर्क डजंट हैव वेरिएबिलिटी और उसकी डिफरेंट डायमेंशंस नहीं है काम करने की, then it becomes boring on the first place, and then it can take you to presenteeism. और जो मैं आपसे कह रही हूँ कि आप इसको एब्सेंटिज्म से डिफ्रेंशिएट करें. एब्सेंटिज्म का मतलब ये है कि द वर्कर
takes more and more leaves. काम से घबराता है और छुट्टियां बहुत लेता है, या फिर ये कहता है कि मैं अभी आया, मुझे काम है, और 2 घंटे के बाद आता है. So he stays absent from the work many times. Presenteeism means you are present at the work, but you are less productive. You show less interest in the work. तो अब ये देखिए कि ये presence जो है, that also becomes meaningless because that is not related with the productivity of that person's work. He doesn't produce much work, he stays there. And that is not bringing any positive and important, significant contribution to the organization where that person is working. एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे आपको एक बल्कि ओल्ड मैक्सिम दिखाना चाहूँगी, वो ये है कि वैरायटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ. ऐसे ही ये बात नहीं कही जाती कि वैरायटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ, एंड दिस वैरायटी मे बी इज़ एक्सपेक्टेड and appreciated in all spheres of our lives. चाहे वो academic activities हों, तभी उसमें आपको पिछले लेक्चर्स में मैंने ये कहा था कि टीचर्स जो हैं, अच्छे टीचर्स, वो ये कोशिश करते हैं कि उसमें नोवेल्टी पैदा करें, उसमें नई नई चीज़ें क्रिएट करें, और उसमें कोई हर्ज नहीं है. जैसे बात हुई थी कि अगर कोई टास्क आपने क्लास में किया, कामयाब नहीं रहा, तो आप कहते हैं ऑलराइट, वी कैन स्विच टू अनदर एक्टिविटी, इट डिडंट वर्क. So it is very important that there is novelty in all spheres of people's life. Even relationships जो हैं, वो भी अगर बिल्कुल एक ही अंदाज से चलने लगें तो बहुत मोनोटोनस हो जाते हैं, और कई दफ़ा ये हॉस्टिलिटी की बुनियाद भी बनते हैं, झगड़ों की बुनियाद भी बनते हैं, जबकि बज़ाहिर ये नहीं लगता कि प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन लोग चिड़चिड़े की हुए हैं. So people can get annoyed and even sometime they do not know the cause. A very important factor, particularly in Pakistan, which is related with gainful employment, is income. As I have discussed in the previous lectures, that the relationship between income and happiness is complex, in that sense that in those countries which have been provided already with basic human needs, the correlation between wealth and happiness is small. But the correlation between happiness and wealth is from moderate to large in poor countries where basic essential needs are not provided to human beings. और वो basic needs कौन सी हैं? शेल्टर की, फूड की, वगैरह वगैरह. जब ये प्रोवाइड नहीं होती तो फिर इंसान को दौलत की अहमियत का ज़्यादा अंदाज़ा होता है, ज़्यादा एहसास होता है. इसीलिए जराइम जो हैं वो आप देखें कि लोअर स्टेटस लोगों में ज़्यादा पाए जाते हैं. गो करप्शन तो बड़े बड़े लेवल्स पे भी है. वो एक और बात है कि दौलत की ख्वाहिश जो है वो शायद ख़त्म ही नहीं होती, ऑल्दो पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड कि इट कैन नॉट ब्रिंग यू अल्टीमेट हैप्पीनेस. सो देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन इनकम, wealth and happiness and life satisfaction and overall subjective well-being. लेकिन ये एक complex relationship है in that sense that if you do not have money, then it breeds anxiety and misery. But if you have abundance of that, it does not guarantee that you will be a very happy person in the world. So that is why I'm saying the relationship is complex. पैसा है और उसमें इजाफा होता चला जाता है तो कोई ये किसी भी ज़्यादा खुशी का बायस नहीं बनता. लेकिन पैसा नहीं है जो बुनियादी ज़रूरियात पूरी कर सके, then it is a major problem. So according to this issue, I will be next referring you to study Positive Parenting Program, which was developed by Sanders et al. In 2003. And that Positive Parenting Program was in fact created to lessen the negative effects of parents' overwork. Because in this world, there is a general understanding that income can bring happiness. Although again I would repeat that there is a relationship between happiness and income, लेकिन ये relationship जो है महदूद है. ये बहुत ज़्यादा दौलत के साथ बहुत ज़्यादा खुशी हासिल करने वाला concept नहीं है. So that is why this program was developed, that if people do understand that only income is important in bringing security and life happiness, then they are wrong. And this problem occurs when especially both parents are working,
और आप ये देखिए कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो मर्द और औरत सारे ही काम करते हैं. हमारे मुल्क में भी अब बहुत सारी औरतें काम करने लगी हैं, लेकिन फिर भी रेशो कम है औरतों का काम के सिलसिले में. So when both parents are working, then the problem occurs कि whether they are careful or not in giving proper attention and care to their children. और यहाँ पे प्रॉब्लम पैदा होती है कि ये प्रोग्राम उनको ये बताता है कि दौलत अल्टीमेट हैप्पीनेस नहीं ला सकती. एंड द इशू इज़ नॉट दैट बोथ पेरेंट्स शुडंट वर्क, ये बात नहीं है. और परसूट ऑफ मनी इज़ आल्सो नॉट रॉन्ग, ये भी गलत नहीं है कि आप पैसे के पीछे भागे. ऑब्वियसली आजकल के ज़माने में जब महंगाई बहुत ज़्यादा है हर जगह और लाइफ को लग्जरियस करने के लिए हर शख्स कोशिश करता है, तो परसूट ऑफ मनी इज़ आल्सो अ नेसेसिटी, लेकिन not at the cost of neglecting your children. So that is the purpose and motto of this program. The next point is companionship. How important is companionship in work? लाइफ में कितनी अहमियत है कि कंपेनियनशिप फील होनी चाहिए. यानी क्या ज़रूरी है कि जहाँ पे हम काम कर रहे हैं हम ये फील करें कि ये हमें वहाँ पे अच्छी कंपनी भी मिले. Some time before it was felt that there should not be a very good companionship as far as different status people are concerned at the same workplace. For example, मैनेजर और एम्प्लॉयज़ के दरमियान companionship नहीं होनी चाहिए because it was thought that perhaps it leads to less productivity. क्योंकि क्या होता है, ड्यूल रिलेशनशिप्स हो जाते हैं. एक तो बॉस का और एम्प्लॉय का रिश्ता है, अब वहाँ पे थोड़ी सी फ्रेंडशिप भी हो गई तो फिर काम में गड़बड़ हो जाती है. एंड दैट इज़ वाई दिस क्वेश्चन वॉज रेज्ड that does socializing among co-workers lead to poor productivity? And several kinds of researches were conducted on this issue to explore this issue. Some studies obviously showed that there should not be a great deal of companionship among co-workers, especially high or low status, क्योंकि उससे productivity पर असर पड़ता है. लेकिन recent studies have shown some different results. और वो क्या हैं ये अब देखते हैं. I am quoting here one study from Tom Rath, and Tom Rath's survey of 1009 people using Vital Friends assessment, which was conducted in 2006, showed that the sense of community at a workplace contributes to happiness. और ये जो research थी that was in fact conducted by Gallup organization, and they published their findings in a book which title was Vital Friends. और Vital Friends के ये जो टाइटल था उसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो कंपेनियनशिप है co-workers में, in fact that brings happiness, and if you are happy so then there could be consequences of this happiness that you will be more interested in your work, क्योंकि ये एक साइकिल सा है जो रिपीट होता है पॉजिटिव इमोशंस का और वर्क का और प्रोडक्टिविटी का. इफ यू आर हैप्पी एट योर वर्क, यू आर मोर सेटिस्फाइड विद योर लाइफ, देन यू आर मोर प्रोडक्टिव एंड दैट यू आर परफॉर्मिंग वेल एंड यू आर ट्राइंग टू अचीव योर टारगेट्स एंड गोल्स. सो दिस study had different findings than the studies which were conducted earlier. So maybe it is not a bad idea to have good companionship at work, और उसकी वजह से अगर आपकी परफॉर्मेंस में इजाफा होता है तो फिर जाहिर है कि ऐसा काम करने में कोई हर्ज नहीं होता. लेकिन बहरहाल इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाना चाहिए कि जो हाई और लो स्टेटस में बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप है वो कभी कभार बहरहाल प्रॉब्लम का बायस बन सकती है, क्योंकि उससे फिर जैसे मैंने पहले कहा ड्यूल रिलेशनशिप्स की वजह से प्रॉब्लम आती है. पीपल एक्सपेक्ट दैट परहैप्स because they are having friendship with their or friendly relationship with their boss, so they can do less work और उससे फिर further problems productivity में और organization में पैदा हो सकते हैं. A very important point is safe work environment.
again, it varies from the needs of individual to individual. People would have their different demands regarding the safety of the work environment, or it varies from work to work also. Some works are really demanding in that sense that there is a challenge, और अगर अकेला challenge हो फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन there are some works which have some danger which is inherent in that job. मिसाल के तौर पर आपने कई दफ़ा अखबारात में पढ़ा होगा कि कुएं में उतरने से एक शख्स जो था वो जाँ बहक हो गया, दम घुट गया, अंदर गैसेस होती हैं जो कि इंसान की सेहत के लिए ठीक नहीं होती, या जो गटर साफ़ करने वाले लोग हैं वो हालांकि इंस्ट्रूमेंट्स अपने साथ लेकर जाते हैं लेकिन वहाँ पे दम घुटने से वो मुज़र सेहत जो गैसेस वहाँ से एमिट होती हैं उनकी वजह से डेथ हो सकती है। फिर ऐसे लोग जो कि कोल माइंस में काम करते हैं वहाँ भी ख़तरा होता है। तो बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं विच आर एक्चुअली प्रोन टू रिस्क्स एंड विच हैव ग्रेटर रिस्क्स. सो particularly for those people who are working in these kind of environment, perhaps it is very important that the work environment is safe और उनकी सेफ्टी का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाए. लेकिन ये भी हो सकता है कि environment में as such सेफ्टी की डिमांड नहीं है, बट इट इज़ द नीड ऑफ द पर्सन. और बाज़ औक़ात जैसे मैं खंबे पे लोगों को देखती हूँ चढ़े हुए, वो इलेक्ट्रिसिटी की कोई प्रॉब्लम होती है और वो तारें ठीक कर रहे होते हैं, यकीन करें मुझे बड़ा डर लग रहा होता है कि इसके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि इस तरह के वाक़यात सुनने में आते रहते हैं कि जो है वो किसी नंगी तार के साथ हाथ लग गया और शख्स जो था वो वहीं तारों के साथ चिपक गया. तो इस तरह के वाक़यात से फिर अंदाज़ा होता है कि सेफ्टी एट वर्क इज़ आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर regarding person's life satisfaction. So perceived safety of the workplace is one of the most robust predictors of employee satisfaction, and that was shown in a study that was conducted by Harter and colleagues in 2002. So this was all about today's lecture. What we have studied today, we in fact started a new topic which is related with the previous module. And what is that previous module? मैं ये क्यों रिपीट करती हूँ कि मैं आपसे पूछना चाहती होती हूँ ताकि मुझे ये पता चले साथ साथ, या आपको ये एहसास हो कि आप पिछला कॉन्टेक्स्ट याद रखे हुए हैं या नहीं, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के बगैर किसी चीज़ को नहीं पढ़ना चाहिए. So what we are studying, basically we are studying our module number 6 that is related with positive environments, and the first environment that we discussed was positive schooling, and the second is positive work या gainful employment. And in today's lecture we talked about different characteristics of gainful employment. सबसे पहले मैंने इसमें लाइफ सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस को डिस्कस किया था, और हमने ये देखा था कि देयर इज़ अ मॉडरेट कोरिलेशन बिटवीन जॉब सेटिस्फैक्शन एंड सब्जेक्टिव वेलबींग, एंड सेम रिजल्ट्स हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम पाकिस्तानी सर्वे दैट दोज पीपल who are satisfied with their work and work conditions, they are more conducive to happiness and life satisfaction. Then we also talked about variety in duties. If people's work are not monotonous, then they are more productive. Otherwise क्या होता है कि varieties ना होने की वजह से वो absenteeism का शिकार हो जाते हैं और काम बोरियत पैदा करने लगता है. इसी तरह से एक और important factor था safe work environment, जो obviously हमने आपने देखा आखिर में डिस्कस किया था. And that shows that for some people it is very important that their work environment shall be safe, and this also varies from work to work. Then we also talked about the importance of income, and I told you that in poor country this association is a lot more than it has been observed in rich countries, that people who are more wealthy, they report themselves to be more happy, and that is why we can say that it is a factor which is very much related with gainful employment. Driving purpose in providing services is also very important, because you think that what you are doing has some purpose and your life has some meaning. और आपको पता है कि पहले हमने काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया है कि when you feel a meaning of your life, then it is really psychologically healthy and it would have very beneficial effects on your mental health.
Another point was engagement and involvement in work, and that is related with a flow state. When you are engaged in your work, then you ultimately go into a flow state जिसमें टाइम के गुजरने का भी एहसास नहीं होता, और जब टाइम के गुजरने का एहसास नहीं होता तो ऑब्वियसली आप बोरियत का भी शिकार नहीं होते. Another important point was performing well and meeting your goals. If you think you are performing well and that goals that you have targeted for yourself, you are achieving them, then again you think that your life is fulfilling its purpose. The last important point was companionship and loyalty among the co-workers. And the previous studies, although they indicated that it is not recommended to have a friendly relationship between co-workers, the current research shows that it leads to more productivity. So this was all about today's lecture. अगले लेक्चर में आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.